Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सबको जो एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आज का क्लास मैं लेने वाला हूँ। तो जो आज का श्लोक है वो है दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय और 42वां 42 श्लोक नंबर 42। हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय और 42वां श्लोक। स एवेदं जगद्दाता भगवान धर्म रूपधृक् पुष्णति स्थापयन् विश्वं नारासुरादिभिः। तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद दूसरे स्कंद, जिसका जो शीर्षक है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, और जो अध्याय है वो 10वां अध्याय है जिसका शीर्षक है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। तो इस श्लोक का जो अनुवाद और तात्पर्य जो है छोटा है, उसको हम देख लेंगे, अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। He the personality of Godhead as the maintainer of all in the universe appears in different incarnations after establishing the creation, and thus he reclaims all kinds of conditioned souls amongst the human, the non-humans, and the demigods. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead Vishnu incarnates himself in different societies of living entities to reclaim them from clutches of illusion, and such activities of the Lord are not limited only to human society. He incarnates himself even as a fish, hog, tree, and many other forms, but less intelligent person who have no knowledge of him deride him even if he is in human society as a human being. The Lord therefore says in Bhagavad Gita 9.11, Avajanti mam muda manusham tanum ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. As we have already discussed in the previous verses, it is concluded that the Lord is never a product of material creation. His transcendental position is always unchanged. He is the eternal form of knowledge and bliss, and he executes his almighty will by his different energies. As such, he is never the subject of reactions for any of his acts. He is transcendental to all such conceptions of action and reaction. Even if he is visible in the material world, the exhibition is only of his internal energy, for he is above the good and bad conceptions of this material world. In the material world, the fish or the hog may be considered lower than the man, but when the Lord appears as a fish or hog, he is neither of them in the material conception. It is his causeless mercy that he appears in every society or species of life, but he is never to be considered one of them. Conception of the material world, such as good or bad, lower and upper, important and insignificant are estimations of the material energy, and the Supreme Lord is transcendental to all such conceptions. The word Param Bhavam or transcendental nature can never be compared to the material conception. We should not forget that the potencies of the Almighty Lord are always the same and do not decrease because the Lord assumes the form of a lower animal. There is no difference between Lord Sri Rama, Lord
Sri Krishna and his incarnation is a fig, fish and hawk. He is all pervading and simultaneously localized at any and every place. But the foolish person with a poor fund of knowledge or want of that Param Bhavam of the Lord cannot understand how the Supreme Lord can take the form of a man or fish. One compares everything to one's own standard of knowledge, as a frog in the well considers the sea to be like the well. The frog in the well cannot even think of sea, and when such a frog is informed of the greatness of the sea, it takes the conception of the sea as being a little greater than the well. As such, one who is foolish about transcendental signs of the Lord will find it difficult to understand how Lord Vishnu can equally manifest themselves in every society of the living entities. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश। हरे कृष्ण। तो आज का क्लास मैं ले रहा हूँ और क्योंकि मुझे फिर इंडिया के 9 बजे तक मतलब निकलना पड़ेगा घर से, तो इस वजह से आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये छोटे से समय में जितनी भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जो भी मैंने सुना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात आती है कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। हम बार बार ये कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड 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 गॉड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? The God is an abbreviation. Abbreviation समझते हैं ना, acronym. God का acronym क्या? GOD. The G stands for generator, O stands for operator, and D stands for destroyer. The one who generates, one who operates, and who destroys. यानी जो मतलब जन्म देता है या जो पैदा करता है, उसके बाद में उसको पालता है और उसके बाद में उसका विनाश करता है। तो ये जब पूरी सृष्टि का रचयिता, पूरी सृष्टि का पालनहार और पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला कौन है? वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये उनकी एक स्थिति है, ये इनकी एक पोजीशन है, ये भगवान की एक पोजीशन है, ये इनकी एक क्वालिटी है। तो हमने तो भगवान के जो क्वालिटीज देखी है, भगवान की कितनी क्वालिटीज हैं? तो भगवान की 6 ऐश्वर्य है। 6 यानी 6, तो 6 ऐश्वर्य हैं। उसके अंदर क्या है? BSKRFR। B is beauty, S is strength, BSK, K is knowledge, फिर उसके बाद में BSKR, R is riches, फिर F is fame and R is renunciation। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि भगवान की पोजीशन, भगवान की स्थिति क्या है। तो वो कौन है? वो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है। तो अगर जीवन में देखा जाए, अगर हम अपने जीवन को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, तो देखिए कोई भी चीज को मतलब बनाना मुश्किल है, इस बहुत कठिन है। तो मगर उस चीज को, जो कठिन चीज है, उस चीज को फिर संभालना, उसको पालना बहुत मुश्किल है, और संहार करना तो उससे भी आसान है। तो कहने का मतलब है, जैसे हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर कि हम माता पिता जो है शिशु को जन्म देते हैं, तो वो उसके लिए इतनी कठिन वाली बात, कठिन है मगर इतना कठिन नहीं है। मगर उस शिशु को पालना, जो उसका मेंटेन करना, वो सबसे कठिन है। और सबसे आसान क्या है? इसको डिस्ट्रॉय करना। तो इसके लिए हम, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर को जो बनाना है ना, बना के फिर उसको, घर को जो है संभालना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना बहुत आसान है। दो किसी के साथ में आपने अपशब्द कह दिए तो घर
जो है आपका टूट जाएगा। घर के अंदर जो आपके जो रहने वाले हैं, जो संबंधी हैं, वो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो तोड़ना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर जो है भक्ति चारू स्वामी महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो उसमें बताते हैं कि हाउ दिस इज दैट। तो बोलते कैलिफोर्निया के अंदर जो जंगल है, उसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 5,000 6,000 वर्ष पुराने हैं। तो आप सोचिए कि 5 या 6,000 वर्षों से उनको कौन पाल रहा है, ये बाद में प्रश्न आता है। चलो बीज हो गया, बीज से पेड़ बना, पेड़ बड़ा हुआ, अभी 5,000 वर्षों से उसको कौन पाल रहा है। अच्छा, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको काटना कितना आसान है। आपने एक इलेक्ट्रिक सॉ ले लिया और उसको मिनटों के अंदर उस पूरे पेड़ को आप काट सकते हो, तो वो कितना आसान है। तो यहाँ पर बताते हैं कि मेंटेन, तो पहले तो हमको ये समझना है कि भाई क्रिएट कौन करता है। तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, तो ये तो उनकी एक जो है धारणा है, या उनकी एक जो मंद बुद्धि है, वो कहते हैं कि भाई ये जो मतलब पूरे संसार का, ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ एक एक्सीडेंट से। वो कहते हैं कि बिग बैंग थियरी थी, जिसके अंदर विस्फोट हुआ, और विस्फोट से ये पूरी जो पृथ्वी या पूरे जो ब्रह्मांड, पूरी जो ये कायनात सब मतलब तैयार हो गई। तो ऐसे मतलब ये तो कोई बेवकूफी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि विस्फोट से सिर्फ नाश होता है। कभी आपने सुना है कि एक बम फटा और बम फटते ही जो वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई, बुर्ज खलीफा तैयार हो गया, या बुर्ज अरब होटल तैयार हो गई? ऐसे कभी हमने सुना है? नहीं। विस्फोट होने से हमेशा नाश ही होता है, कभी भी जो है उसमें से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती। जो बनी बनाई चीज होगी उसका विनाश होगा। तो जो मतलब कहने का अर्थ ये है, तो इस श्लोक के माध्यम से, इस जो तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं, इट इज ओनली अ फूल हु विल थिंक दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय एन एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट से जो है, जो एक घटना घटी, जिससे दुर्घटना घटी, घटना नहीं दुर्घटना घटी, जिससे ये पूरे संसार का जो है उत्पादन हुआ, या संसार पूरा तैयार हो गया। तो ये मतलब एक उसके बोलते हैं कि मूढ़ा, यहाँ पर कहते हैं कि जो मूढ़ है, जो बेवकूफ हैं या स्टूपिड हैं, या जिसको बोलते हैं कि लॉगर हेड हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत आसान है, और वो कह देंगे कि भाई ये एक्सीडेंट से मतलब ठीक हो गई, मतलब ये संसार बन गया। और उसके बाद में कैसे क्या करते हैं कि भाई आगे चलते, तो उसका एक उदाहरण जो है भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक डेंट है, गाड़ी के जो आगे बोनेट के ऊपर एक डेंट है। तो क्या उस गाड़ी को आप जोर से चला के जाओगे और दीवार के अंदर उसका एक्सीडेंट कर दोगे तो डेंट ठीक हो जाएगा? तो कहते हैं कि भाई ये तो बेवकूफी है, ये स्टूपिडिटी है। तो ओनली द स्टूपिड पीपल, ओनली द मूढ़ास, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो मतलब अपने लेक्चर्स के अंदर हमेशा बताते हैं कि जो मूढ़ हैं वो कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट से जो है ये पूरी जो पृथ्वी का या पूरे जो ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। तो एक्सप्लोजन से कभी कोई बिल्डिंग या ट्रीज या कोई जो बोलते हैं पूरी वर्ल्ड नहीं बनता। एक्सप्लोजन कैन ओनली डिस्ट्रॉय। बट द सो कॉल्ड साइंटिस्ट वो एक ही बात पे उड़ रहे हैं कि कि मटेरियल जो क्रिएशन हुआ है, मटेरियल नेचर जो क्रिएट हुआ है, वो एक्सप्लोजन से हुआ है। तो अभी चलो एक मतलब एक बहुत ही दूर की बात सोच के अगर हम वो भी कहते हैं कि ठीक है चलो निर्माण हो गया, मगर उसको पालन कौन कर रहा है? एक जो जैसे पहले बताया कि एक वृक्ष है वो 5,000 वर्षों से जीवित है, उसके अंदर उसकी टहनियां हैं, उसके पत्ते हैं, वो जीवित है, उसको पाल कौन रहा है 5,000 वर्षों से? मनुष्य की आयु तो कितनी होती है? मैक्सिमम 100, 110, 115। सबसे जो उम्र वाला आदमी कितनी उम्र का होगा? 118 अभी जो बुक्स के अंदर बताया गया। तो 118 वर्ष की उम्र वाला आदमी 5,000 वर्ष वाला पेड़ को कैसे पाल पाएगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन पेड़ों को कौन पाल रहा है? और वो भी जंगल के अंदर जहाँ कोई जाते नहीं है, लोग कभी कभार ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो उन पेड़ों को पालता कौन है? तो जब हम ये बात सोचते हैं, ये बात को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और वो जिज्ञासा किसमें उत्पन्न होती है? वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिजीव है, जो बुद्धिमान है, उसके अंदर ये जो मतलब ये प्रश्न उठते हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि दुनिया हम जो भी है यहाँ पर, जो एक
संसार बना हुआ है उसके अंदर सीजनल चेंजेस होते हैं। गर्मी आती है, गर्मी के बाद में जो है बारिश आती है, बारिश के बाद में जो ठंड होती है, ठंड के बाद में फिर गर्मी होती है। तो ये कैसे चलता है, ये सीक्वेंस कैसे चलता है, ये भी इसको मतलब ये सीक्वेंस भी इतनी परफेक्टली कौन चला रहा है, इतनी परफेक्टली कैसे चल रहा है। थोड़ा भी इसके अंदर आगे पीछे हो जाता है तो या तो वहां पर बाढ़ आ जाती है, या तो भूकंप आते हैं, या तो लैंडस्लाइड्स आते हैं। तो थोड़ा भी अगर आगे पीछे हो जाता है तो कितने सारे नुकसान हो जाते हैं। मगर इसको जो परफेक्टली मेंटेन कौन कर रहा है, इसको परफेक्टली जो भगवान मेंटेन कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इन बातों से, इन बातों से यही बात मतलब जो है निर्णय निकलता है कि जो इंटेलिजेंट है वो मतलब इंटेलिजेंट मतलब बात क्या है, वो ये है कि क्रिएटर और मेंटेनर कोई है जो इसको क्रिएट भी कर रहा है, यानी गॉड, यानी जनरेट भी कर रहा है, और उसके बाद में ऑपरेट भी कर रहा है, इसको मेंटेन भी कर रहा है इस संसार को। एक्सीडेंट से खाली जो है नुकसान ही होते हैं, एक्सीडेंट से खाली डिस्ट्रक्शन होते हैं, इससे कोई भी जो है चीज उत्पन्न नहीं होती। दैट इज द रीजन, इसी वजह से जो शिला प्रभुपाद इसमें कोट करते हैं इस श्लोका के अंदर कि अवजानति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो माम भूता महेश्वरम। तो मूढ़ा मीन्स फूल्स, दोज हु आर स्टूपिड, इडियट्स, लॉगरहेड, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और उसकी शक्तियों को, भगवान की शक्तियों को वो जान नहीं सकते। कौन? जो मूढ़ा है, वो भगवान की स्थिति को, भगवान की पोजीशन को नहीं समझ सकते। दे थिंक, जैसे वो जब कृष्णा अगर उनके सामने भगवान जो है स्वयं एक हमारे जैसे जो है रूप ले लेते हैं, भगवान एक इंसान का रूप लेकर भी आते हैं यहाँ पर, तो वो भगवान को उस समय पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं ये तो कृष्ण है, ये तो हमारे जैसा ही है, इसकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, इसके 2 हाथ है, तो ये तो एक मनुष्य है, मनुष्य जैसा ही है। तो जब ये एक मनुष्य जैसा है, मेरी में उसमें कोई अंतर नहीं है, तो क्यों मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी भगवान हूँ। ये अगर अपने आप को भगवान कहता है तो मैं भी अपने आप को भगवान कहता हूँ। तो ये जो है ये मूढ़ा की जो स्थिति है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर क्या बताया कि ईश्वर कौन होता है? भगवान। ईश्वर इज अ कंट्रोलर। और इस श्लोक के अंदर जो भी मैंने भगवद गीता का श्लोक पढ़ा तो उसके अंदर क्या बोलते हैं? भूतम महेश्वरम, माने मैं जो है सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। मैं कंट्रोलर तो हूँ, मतलब मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, भगवान अपने आप को बताते हैं। तो मतलब वो जो मूढ़ा है वो उसको जान नहीं पाते, वो नहीं समझ सकते। सो श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर इसी जो श्लोक के ऊपर लेक्चर्स के अंदर बताएं, सो वी हैव गॉट अ वेरी शॉर्ट जो बोलते हैं क्राइटेरिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के अंदर और एक मूढ़ा, जो श्रील प्रभुपाद अपने जो वर्ड्स हमेशा यूज करते हैं वो कहते हैं रास्कल। तो बोलते हैं कि रास्कल और इंटेलिजेंट जो मनुष्य 2 जीव के अंदर अंतर क्या है? तो व्हाट इज दैट, कि वो जो शॉर्टकट क्या है? बोला वन हु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा इज इंटेलिजेंट, वन हु इज नॉट इज रास्कल। बोला सिंपल सी थियरी है कि अगर जो भगवान का भक्त नहीं है वो कौन है? वो रास्कल है। जो भगवान का भक्त है वो कौन है? वो इंटेलिजेंट है। तो इसको और उसके बाद में हम समझने का प्रयास नहीं थे व्हाट विल बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। अभी इंटेलिजेंट तो है कोई अच्छा मतलब बुद्धिजीव है, तो बुद्धिजीव के प्रश्न कैसे आते हैं? बुद्धिजीव क्या सोचता है जब वो 5000 वर्षों की बात सुनता है कि 5000 वर्षों की आयु है इस वृक्ष की, तो वो क्या सोचता है? तब वो सोचता है कि इस वृक्ष को किसने, इस वृक्ष का जो बीज है उस बीज में से इतना बड़ा वृक्ष कैसे आया? इस वृक्ष को कौन पालता है? इसकी टहनियों तक इसकी मतलब जो पुष्टि है, यानी इनकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है इन पत्तियों की, वो उन तक उनकी शक्ति कौन पहुंचाता है? और ये 5000 वर्षों का पुराना इतना बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, इसको हर टहनियों को कौन जीवित रखता है? इसके जो मूल है इसको कौन खुराक देता है? कौन इसको पानी देता है? तो ये जब सोचता है एक बुद्धिजीव, तो ये उसके प्रश्न उठते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो अपने जीवन के अंदर क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि पहले ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? मेरा और मैं यहाँ इस भौतिक संसार के अंदर, इस संसार में मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाई इज मैं खुश क्यों हूँ? कभी कभी मैं दुखी क्यों हूँ? और क्यों ऐसा है कि जिसको मैं देखता हूँ तो वो सब
कोई न कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा है। तो ये सब प्रश्न किसके हैं? ये सब प्रश्न उसके हैं जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिजीव है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस संसार के अंदर मैं दुखी हूँ, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है और उसके पास मेरे इन प्रश्नों का उत्तर है। तो तब वो क्या करता है, वो बुद्धिजीव यानी वो इंटेलिजेंट पर्सन जाता है किसके पास? वो जाता है ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर सपोज महाराज उदाहरण देते हैं कि अगर आप बंबई के अंदर हो और बंबई से आपको कलकत्ता जाना है, तो आप ट्रेन से जाना है, तो आप क्या करोगे? आप स्टेशन मास्टर को फोन करोगे और उससे पूछोगे कि प्लीज आप मुझे बताएं कि आज या कल की तारीख के अंदर कौन सी ट्रेन और कितने बजे और कौन से प्लेटफॉर्म से बॉम्बे से निकलेगी और कलकत्ता जाएगी। जब आपने उनसे ये प्रश्न पूछ लिया तो आप बुद्धिजीव हो, क्योंकि आपके पास आपने पहले प्रश्न जो है लिखे, फिर उन प्रश्नों का उत्तर लिया और उन प्रश्नों का उत्तर आपने लिख के और आपने अपने अपने उसके ऊपर आप उस पर अमल करोगे, क्योंकि आपने किससे पूछा है? स्टेशन मास्टर से पूछा है, जिसको इसकी पूरी जानकारी है ट्रेनों की। आप ऐसा नहीं करो कि आप जाके स्टेशन पे खड़े हो गए और जो भी ट्रेन जाती है, चाहे ये ट्रेन जाएगी कहाँ, भाई ये ट्रेन आई है तो इस ट्रेन के अंदर चढ़ जाओ, ये मुझे जो है कलकत्ता पहुंचा देगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो 100 की तादाद में ट्रेनें आती जाती हैं। अगर आप ट्रेन में चढ़ गए और उसके वो ट्रेन आपको कलकत्ता के बजाय आपको मद्रास ले जाएगी, फिर मद्रास में आप स्टेशन पूछ रहे, बोला ये तो मद्रास है, वो मुझे कलकत्ता जाना है, चलो अभी ये दूसरी ट्रेन जा रही है, इसमें चढ़ जाता हूँ। उसमें चढ़ जाते हो तो वो आपको कहाँ? मिजोरम पहुंचा देगी। तो ऐसे मतलब आप कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके प्रश्नों का उत्तर है, वो आपको उन सोर्स से, जो राइट सोर्स है उसको पूछना है। तो राइट सोर्स, जब ये जो प्रश्न मैंने पूछे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ इस भौतिक जगत में क्या कर रहा हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं कभी कभी खुश क्यों होता हूँ, और मैं यहाँ पर जिस किसी व्यक्ति से मैं अगर बात करता हूँ तो वो हमेशा अपने अपने दुख रोता रहता है। यानी हर कोई व्यक्ति है जो दुखी है, तो इसमें से सुखी कौन है? और जो कहता है कि मैं सुखी हूँ, वो तो क्षण भर के लिए खुश होता है, कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो भाई? आज मुझे जो है 1 मिलियन की लॉटरी लग गई। तो दूसरे दिन बोलते कि अरे यार गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत मैसेज मिला था, तो दुखी हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर कोई भी 100% सुखी नहीं है, 100% जो है आदमी परेशान लगा पड़ा है। तो वो जब ये प्रश्न है वो किससे जाके फिर पूछता है, तो उस ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास जाता है जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और जिसने इन सभी प्रश्नों का उत्तर उसके पास है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा जो बुद्धिजीव है, बुद्धिजीव जाता है और वो जाके इनसे मिलता है। बुद्धिजीव जो है वो क्या करता है? बुद्धिजीव जाके ऐसे व्यक्ति से मिलेगा, उससे पूछता है, और जो ऐसा व्यक्ति है, यानी जो ऐसे जो इन प्रश्नों का जानकार है, वो प्रश्न जानकार उसको क्या बताता है कि तुम कौन हो? तो तुम जो है, तुम एक आत्मा हो, तुम परमात्मा के दास हो, तुम्हारा यहाँ पर कार्य क्या है? तुमने तो वो जब उसको तब हम सुनते हैं कि भाई ये हम शरीर नहीं है, तो शरीर अगर ये शरीर है तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर उसको पता चलता है कि भाई मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा कौन है? तो आत्मा की क्वालिटी क्या है? तो फिर उसको आत्मा की क्वालिटी बताते हैं कि ये कभी भी जो है इट इज अनबॉर्न, ये कभी मरता नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो जब भी वो बोलता है कि अगर मैं सोल हूँ तो मैं कहाँ से आया हूँ, फिर वो तो अगर मैं सोल हूँ तो फिर मुझे ये दुख क्यों होता है, मुझे जो इतनी परेशानी क्यों होती है, मुझे शरीर के अंदर इतना दुखाव क्यों होता है, इतनी तकलीफें क्यों आती है? तो फिर उसको ये पता चलता है कि ये बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस एक्शंस, जो मैंने कर्म किए हैं वो कर्मों के कारण है। फिर उसको ये भी पता चलता है कि 3 गुण जो हैं, मोड ऑफ मटेरियल, सतो रजो तमो गुण, इन गुणों के कारण, यानी जो मेरे पिछले कर्म हैं उनके कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, और जो ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो ये सब कार्य कर रहे हैं। तो हु इज मेकिंग दिस थिंग हैपन? जो गुण और कर्म ये जो है कार्य करते हैं, ये मुझे दुख पहुंचाते हैं, ये जो है मुझे जो है इस कोई परेशान वाली स्थिति में डालते हैं। फिर वो आगे जाता है, वो बोलता है कि भाई गुण कर्म तो अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर जो
गुरु है या जो बुद्धिजीव है, जो सब इन प्रश्नों का उत्तर जानता है, वो उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारे गुण और कर्म को संभालना या उसको कैसे मतलब जो है तरीके से आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आपको डेमीगॉड्स के पास जाना पड़ेगा। तो डेमीगॉड्स के पास जाता है। तो डेमीगॉड्स कौन है? तो डेमीगॉड्स एक जो भगवान ने एक फोरम बनाया है जहां पर उन्होंने जो जितने भी देवी देवता हैं उनको वो कार्य दिए हैं कि भाई आप इस मटेरियल नेचर के अंदर जो भी लोग हैं इनके जो है जो भी तकलीफ है उनको आप मैनेज करो, उनको तकलीफें दो, उनसे जो है उनकी तकलीफों का निवारण करो। तो ये जो फैसिलिटीज हैं, ये फैसिलिटीज जो हमको मिलती हैं, तो जब भी हम इन देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे ये फैसिलिटीज मिलती है, जो भी हम तो उन फैसिलिटीज लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब हम ये जितने भी देवी देवता हैं उनसे जो फैसिलिटीज लेते हैं, तो हमको उनको कुछ ऋण देना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह किस तरह कि जब अगर हमको घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमको इलेक्ट्रिक बोर्ड को जो हमको पेमेंट करनी पड़ती है। अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास पेमेंट जाएगी तो इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड को आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप बोर्ड का पेमेंट करते हो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने पास पेमेंट रख देती है, कैश अपने पास रख देती है? नहीं, वो क्या करती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उसको देती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर किसको देता है? स्टेट को देता है। तो इसी तरह ठीक अगर जो ये देवी देवता है, देवी देवता को जब भी आप यज्ञ के मात्र जो पेमेंट है वो यज्ञ करते हो, आप उनको चढ़ावा चढ़ाते हो, उनके पास जो उनको ऑफर करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो जो है उनके बॉस के पास, यानी उनका जो फाइनल जो स्टेट है या जो सेंट्रल है, वो सेंटर कौन सा है? वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के भगवान ने उनको जो असाइनमेंट्स दिए वो असाइनमेंट्स वो पूरी करते हैं, जो यज्ञ में उनको मिलता है वो भगवान को ऑफर करते हैं। तो ऐसा ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, तो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, तो भगवान जो है वो ही कहते हैं, यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आपको शांति पूर्वक रहना है, आपको अगर पीसफुल रहना है, आपको जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है वो फैसिलिटीज तो आपको कंटिन्यूअस रखनी है, तो आपको क्या करना है? तो आपको जितने भी यज्ञ करने हैं, यज्ञ के माध्यम से आपको भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रसन्न करना है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस कलयुग के अंदर क्या है, कलयुग का जो युग धर्म क्या है? तो बोला हरिनाम संकीर्तन। तो आपको क्या करना है, अब भगवान का सिर्फ और कुछ नहीं करना है, आपको भगवान का नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप करते रहोगे तो इस कलयुग के अंदर से हमारा उद्धार हो सकता है। हम जितने भी जो हम फैसिलिटीज लेते हैं, हमको डेमीगॉड्स जो है, हम जब अगर कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी ये हैं अपने फैसिलिटेटर्स जो हैं, जो हमारे लिए फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, जितने भी डेमीगॉड्स हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे और सीधा हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो केवल यही एक रीजन है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो वो जो इसके तात्पर्य के अंदर बताया है कि जो मतलब मूढ़ है, वो मूढ़ा क्या सोचता है? मूढ़ा यही सोचता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं जो है भगवान बन सकता हूं। तो वो ऐसा क्यों करता है? अभी ये प्रश्न का उत्तर भी इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी है, मूढ़ की बुद्धि इतनी है, उसको बुद्धि को विकसित करना है। बुद्धि का विकसित कैसे होगा? तो ABCD से होता है। ABCD क्या है? एसोसिएशन, और उसके बाद में बुक्स, C is chanting and D is diet। तो ये जब ABCD करेगा, एसोसिएशन, बुक्स पढ़ेगा, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ेगा और सही जो संप्रदाय से जुड़ेगा, उसके बाद वो चैंटिंग करेगा और डाइट को फॉलो करेगा, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे विकसित होगी। तो कहते कि जब तक उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती तब तक उसकी सोच कैसी है? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक मेंढक को अगर आप कुएं से बाहर निकाल कर उसको समुद्र में डाल दो, तो मेंढक की सोच क्या है? मेंढक की सोच है कि दुनिया सिर्फ जो है कुएं जितनी है। अगर हम बाहर रख देते हैं, उसको अगर समुद्र में डाल देते हैं, तो समुद्र के अंदर वो बोलेगा, उसकी सोच तभी भी क्या होगी कि जो ये थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा बड़ा है इससे, कुएं से, उसको पता नहीं कि कितना बड़ा है, वो उसकी सोच इतनी रहेगी कि ये तो मेरा जो कुआं था ना, कुएं से थोड़ा बड़ा है। तो कहने का मतलब है जब तक
अगर हम जो एसोसिएशंस नहीं लेंगे, एसोसिएशन भक्तों का एसोसिएशन लेंगे, शुद्ध भक्तों से हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी बुद्धि भी विकसित नहीं होगी और हम भी, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कि हम मूढ़ा रहेंगे। और जो रास्कल और इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया, अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज अ इंटेलिजेंट पर्सन एंड अ पर्सन हु इज नॉट अ डिवोटी, ही इज अ रास्कल। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मुझे जो है जाना होगा, तो अगर कोई प्रश्न है तो किसी का कोई प्रश्न है तो रेज कर सकते हैं, और यहाँ पर अच्छे अच्छे भक्त हैं, वो उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। हरे कृष्णा, एंड सॉरी फॉर दिस स्पीडेड अप क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। एंड या ऐसे ही आप आते रहिए, क्लास देते रहिए। तो या वी नो वी आर इन हरी, तो वी कैन लीव प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है तो बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे, वी कैन टेक दैट। तो थैंक यू वंस अगेन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद टू एवरीबॉडी। सॉरी फॉर दिस शॉर्ट एंड स्पीडी class. Hare Krishna.